Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Before we start with the word, I would request our pastor to please pray for the word. और हम वचन की शुरुआत करने से पहले हमारे पासवान से विनती करते हैं कि वो आज के वचन के लिए हमारे प्रार्थना में अगुवाही करें। Hallelujah. Hallelujah. Actually, we all are ready in the spirit और हम सब आत्मा में तैयार हैं because we had such a wonderful time of praise and worship. क्योंकि हमारा इतना अद्भुत ऐसा समय गुजरा है आराधना और स्तुति में। Hallelujah. हालेलुया। Come on, let's bow down our heads in prayer. आइए प्रार्थना में हम अपने सिरों को झुकाएं। Oh, can you just speak in the language of God right now? Sikone hi namandala la kora kadabas teriya la baba baba shanna na niya na masanduru hoste Ori hi la khase di khatawa sheke kastan namandala vasto Ori hi nama mama shen neriya na masto Riya na mama neriya na shen neriya na kora kaste Ribone hi na shondoni Lord, we are experiencing your presence so mightily here, O God. We are experiencing your presence so thick, O God, here. You are present here, Lord Jesus. And there are no words, O God, to say, but we can say thank you, Jesus. Oh, fill us more. Oh, fill us more. Fill us more. More Jesus. More of the Spirit of God. This evening we need more of your Spirit. This evening, Lord, we need you to talk to us. We, your children, are ready to hear your voice. You are faithful God. You are the living God who always speaks to his children. And Daddy, you love to speak to your children. We, your children, are ready to hear your voice. Anoint your ministers with a double portion of your anointing. Oh, let the rivers of waters, let the rivers of anointing, let the rivers of the word of God flow from their mouth now in the name of Jesus. Oh, you give the utterance of God. Now let the mouth be theirs, but the voice be yours, Master. Give your word, Jesus. Fill your people with your word, Master. Every hungry and every thirsty soul be filled by the word of God tonight. Be satisfied with the meat that God is giving us right now. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. I'm just sensing a great joy in this place. Oh, wonderful joy of God is in this place. Every worry, anxiety, fear is going out of this place now in the name of Jesus. And we are rejoicing in your presence. We are glad in your presence, Master. Thank you, Jesus. Anoint, Master. Anoint your ministers. Fill them with the fire. Fill them with your word. Fill them with your revelation. Fill them with the word of edification. Word of exhortation.
तो Oh, I speak, let the prophetic words come out tonight. नबुवत के वचन हमारे मुंह से बाहर Prophetic निकले। words come out. प्रभु भविष्यवाणी के वचन हमारे मुख से Prophecies come out. भविष्यवाणियां निकले। Let the heart of God just speak tonight. और आज की शाम परमेश्वर का हृदय हमसे बात करे। Let it touch the hearts of people. प्रभु ये लोगों के हृदय को छू ले। Let them encourage. प्रभु वो प्रोत्साहित हो। Let them be lifted in their souls tonight. प्रभु उनके आत्मा के अंदर एक बढ़त महसूस करें। Let them experience the presence and the voice of God tonight. प्रभु वो तेरी आवाज को सुनने पाए, तेरी उपस्थिति को महसूस करने पाए। Every plan of the enemy be destroyed in the name of Jesus. बैरी की हर एक चाल नाश हो यीशु मसीह के नाम से। And release His praise for God's glory. प्रभु तेरी स्तुति को आजाद कर तेरी महिमा के लिए। Jesus' name we pray and ask. यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना। Amen and amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Pastor. धन्यवाद पासवान। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Are you excited to listen to God's word? क्या आप उत्साहित हो कि आप परमेश्वर के वचनों को सुने? Before we start with the word, और हम वचनों की शुरुआत करने से पहले I would just ask the Holy Spirit to take over. हम पवित्र आत्मा से मांगते हैं कि उसका कब्जा। जैसे हिरनी पानी के लिए, क्या आज आपका मन प्यासा है? प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। क्या यीशु के लिए आज आप प्यासे हैं? जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। Jesus, तुझे ढूंढता हुआ, Jesus, take over. तुझे चाहता हुआ, Jesus, मुझे खींच ले, मुझे खींच मैं दौड़ूंगा। ले जा मुझे, ले जा मुझे, पकड़ो, तू है जहाँ। पकड़ो, ले जा मुझे, पकड़ो, ले जा मुझे, ले जा मुझे, तू है जहाँ। ले जा मुझे। क्या आज आपका दिल प्यासा है जीवित परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनने के लिए? Are you thirsty to listen to the voice of your sweet Savior? आपके मधुर उद्धारकर्ता के आवाज को सुनने के लिए क्या आप प्यासे हो? Are you ready to receive His sweet presence? क्या आप तैयार हो कि उसके मधुर उपस्थिति को आप ग्रहण करें? I just feel like continuing, this attitude of worship. और हमें ऐसा लग रहा है कि हम निरंतर उसकी आराधना करते रहें। I pray today for you और आज मैं आपके लिए दुआ करती हूँ that the Spirit of God may take over your life. कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर कब्जा करे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Let's look at the word today. आइए आज हम वचनों की तरफ मुड़े। Let's read Psalm 68:19. और भजन संहिता 68. 68। Blessed be the Lord who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation. Selah. Blessed be the Lord our God. Daily He loads us with benefits, the God of our salvation. धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता है। प्रतिदिन आपका बोझ उठाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, the God of our salvation. हमारे उद्धार का परमेश्वर। कहिए, मेरे उद्धार का परमेश्वर, मेरे उद्धार का परमेश्वर। मेरे हृदय के सारे बोझों को उसने उठा लिया है। मेरे हृदय के सारे बोझों को उसने उठा लिया। इसके नाम को हम क्या कहेंगे?
धन्य धन्य। Psalm 65:11. भजन संहिता 65:11 You crown the year with your goodness and your paths drip with abundance. अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मनों को मुकुट रख दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया। कौन सा मुकुट प्रभु ने आपके ऊपर रखा है? भलाई का। भलाई का। Amen. The Lord says, I have crowned the year with goodness. यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तेरे वर्ष को भलाई से भर दिया है। से भलाई। भलाई। आपका परमेश्वर भला परमेश्वर है और उन्होंने आपके सर पर जो मुकुट रखा है वो कौन सा है? भलाई का। तो अपने अगर आपके बाजू में कोई सुन रहा है वचन आपके साथ, तो उनसे कहे कि बहन आपके सर पर भलाई का मुकुट है। क्या हम एक दूसरे से कह सकते हैं? आपके सर पर कौन सा मुकुट है? भलाई का मुकुट है। हालेलुया, हालेलुया। And what does it say in this verse, this translation, 11th verse? Thou crown the year with thy goodness, And your paths? and thy paths drop fatness. Your paths drop fatness. और तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। किसके मार्गों में? परमेश्वर। प्रभु के मार्गों में क्या है? उत्तम उत्तम, the best. It says, your paths drip with abundance with fatness. परमेश्वर के मार्गों में क्या है? Abundance. उत्तम उत्तम ऐसे पदार्थ। जब हम परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं, जब हम परमेश्वर की रूह से भरकर उनकी आज्ञाओं में चलते हैं, तो कहिए मेरा मार्ग उत्तम उत्तम पदार्थों से भरा हुआ है। आमेन। आमेन। सबसे पहले हमने क्या देखा कि प्रभु हमारे बोझ को उठा लेते हैं और क्या करते हैं? हमें आजाद करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वो हमारे ऊपर कौन सा मुकुट रखते हैं? भलाई का। भलाई। What is that song which says, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। क्या है? तू चाहे सिर्फ भलाई Amen. मेरे जीवन में सदा। सिर्फ भलाई। यीशु आपके लिए क्या चाहते हैं? सिर्फ भलाई। सिर्फ भलाई। आप खुद अपने लिए इस गीत को गाएं। जब आप ये कहते हैं तो आप किसी मनुष्य के वचन नहीं कह रहे हैं, आप परमेश्वर के हृदय की उस इच्छा को जानते हैं। Jeremiah 29:11 says, I have plans. प्रभु की योजना आपके लिए क्या है? भलाई की। अच्छा, अभी इसको कैसे फंसाऊं? नहीं, प्रभु की योजना आपके लिए क्या है? भलाई की। And Jesus has crowned you with goodness. परमेश्वर ने आपके सर के ऊपर भलाई का मुकुट रखा है। Amen. आमेन। तो आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम ये सीख रहे हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए क्या चाहता है, यीशु मसीह आपके लिए क्या चाहता है। Psalm 68:19, Psalm 65:11 हमने देखा, it is his desire. ये उसकी इच्छा है। ये वचनों में हमने देखा। सिर्फ भलाई। आप माता पिता है, अगर यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो क्या आप उस व्यक्ति के लिए चाहते हैं कि उसका बुरा हो? तो कैसे वो परमेश्वर आपकी बुराई की इच्छा रखेगा? He wants you to prosper. He wants you to be in good health. The book of John says, beloved. Jesus calls you his beloved.
यीशु मसीह आपको अति प्रिय बुलाते हैं और वो आपके लिए भलाई की, आपके बढ़त की योजनाओं को बनाते हैं। Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करते The हैं। Lord is talking to somebody. परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? My daughter, मेरी बेटी, I love you. मैं तुझसे प्यार करता हूँ। I know you're going through a very tough phase. मैं जानता हूँ कि तू बहुत ही मुसीबत से गुजर रही है, But my love is as strong as death. पर मेरा जो प्यार है वो मृत्यु से भी ज्यादा ताकत And my love will overpower every situation of your life. और मेरा जो प्यार है हर एक जो हालात है उसके ऊपर विजयी रहेगा। Amen. हालेलुया। Psalm 61:1. भजन संहिता 61:1। Hear my cry, O God, attend unto my prayer. Second verse. From the ends of From the the earth. end of the earth will I cry unto thee. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Psalm 61:1. We'll read in Hindi. हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। जब आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी प्रभु आपकी प्रार्थना को शायद नहीं सुन रहे और आप प्रभु को कहते हैं, प्रभु प्लीज अटेंड टू माय वॉइस, मेरी जो बुलाहट है प्रभु, मेरी जो चिल्लाहट है आप उसे सुने। इट सेज, मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा, आप कहीं पर क्यों न रहे। यदि आपने यीशु मसीह को पुकारना सीखा तो आपने सब कुछ सीख लिया। आपको यीशु मसीह के नाम की दुहाई देनी है। It says, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। आपको पता है कि जब आपका हृदय व्याकुल होता है, जब आपका हृदय चिंतित होता है, एक ऐसी चट्टान है जो आपसे ऊंची है और वो है यीशु नामक चट्टान। यीशु आपका शरण स्थान है, यीशु आपका गढ़ है। और जब आप उस चट्टान पर जो आपसे ऊंची उस पर खड़े रहते हैं तो आपको किस तूफान का डर, कौन सी ऐसी आंधी है जो उस नाव को डुबा सके जहां यीशु मसीह विराजमान है। आंधियां आई, तूफान आए, पर वो उस नाव को कभी नहीं डुबा पाए जहां पर यीशु मसीह है। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु मसीह है। आमेन। So whenever you feel your heart is overwhelmed, और जब भी आपको लगता है कि आपका हृदय व्याकुल है, first thing, पहली बात, cry unto the Lord. परमेश्वर की ओर दुहाई, Cry unto the name of Jesus. यीशु मसीह की ओर आप For चिल्लाएं, he is a rock क्योंकि वो एक चट्टान that is है higher than you. जो आपसे ऊंची है। Then shall thou call and God shall. And if you see, we have a confirmation. Pastor also said the same verse. Thou shalt call and the Lord shall answer. आप पुकारोगे और परमेश्वर उत्तर देगा। Thou shalt cry and he shall say, Here I am. और जब भी आप उसे बुलाओगे तो वो कहेंगे कि मैं यहाँ पर हूँ। हम कहते हैं मैं हूँ यहाँ, प्रभु आपकी पुकार को सुन के कहते हैं मेरे बेटे मैं हूँ यहाँ। ये वचन से है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट माय ओन माइंड। और ये वचनों के द्वारा है, मैं अपने मन का नहीं कह रही The हूँ। third verse says, You have been a shelter for me, a strong tower from the enemy. और तू मेरे लिए एक मजबूत गढ़ रहा है, एक छिपने का स्थान रहा है, मुझे सारे बैरियों से तूने बचाया है। Psalm 65, 4th verse. और भजन संहिता 65 चौथा वचन। Blessed is the man whom thou choosest and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. We shall be satisfied with the goodness of your house, of your holy temple. और हम तेरे घर से और तेरे पवित्र मंदिर के अंदर हम तृप्त हो जाएंगे। Goodness of your house. तेरे घर की भलाई। दाऊद जो है वो एक राजा थे, बट उन्हें पता था कि परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के तंबू में जब हम रहते हैं, जब परमेश्वर के लोगों की संगति में रहते हैं, he knew, वो जानता था, he knew the goodness of God. वो परमेश्वर की भलाई को जानता था।
क्या आप जानते हैं जब आप परमेश्वर के लोगों के साथ एकत्रित होते हैं तो परमेश्वर की भलाई आप पर उतर आती है। परमेश्वर के घर में भलाई है, परमेश्वर की उपस्थिति में भलाई है। और आज मेरी ये प्रार्थना है that you may have an encounter with the goodness of Jesus Christ। और आज मेरी ये आपके लिए दुआ है कि आप परमेश्वर की जो भलाई है उससे आपकी मुलाकात हो। Taste and see that the Lord is good। जब के देखे कि परमेश्वर भला है। इसलिए दाऊद बार बार कहता है I bless the Lord at all times। I will bless him at all times। इसलिए दाऊद राजा कहता है कि हर समय मैं परमेश्वर के नाम को धन्य कहूंगा। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। I may go off tone and all that, but I know one thing. I want to just praise him and I just want to lift up the name of Jesus, for I have seen his goodness in my life। Amen। And that's why, I always know one thing। इसलिए मैं ये एक बात जानती हूँ, अति करुणा में दयालु है। बोझ हमारा क्या करता है और डाल देता है, थोड़ा सा है और डाल देता हूँ। तो हमारे बोझ को यीशु मसीह निकालते हैं और आपको अपने आनंद से भरने वाले यीशु मसीह आज आपके घरों में प्रवेश कर रहे हैं। आज वही भले परमेश्वर जिनके मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं वो आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है तो भलाई क्या आपके जीवन से दूर होगी? Never। Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life। Amen। निश्चय करुणा और भलाई। क्या मेरे साथ कहेंगे? निश्चय। निश्चय किस पर निश्चय है? यीशु मसीह पर। यीशु के वचन पर और यीशु मसीह पर। गुडनेस एंड मर्सी। भलाई और करुणा। गुडनेस, भलाई। I just keep the mic down and I give you a demonstration। Goodness, hold my hand। भलाई, Mercy। करुणा। Goodness, भलाई, mercy दया shall follow me वो मेरे पीछे चलेगी all the days of my life। जीवन भर, Because Jesus is good, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह भला Jesus is merciful। और यीशु दयालु है। That's why goodness and mercy shall follow me All the days of my All the life। days। Amen। Amen। Are you happy? क्या आप खुश हो? If you have such a wonderful and good God, अगर आपके पास में इतना प्रेमी, इतना भला ऐसा परमेश्वर है, who is, Bible says, oh my soul, give thanks to the Lord। और वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरी आत्मा परमेश्वर को धन्य कहे, Magnify his name, उसके नाम को तू ऊंचा कर, because he is good। क्योंकि वो भला है। Amen। आमेन। This was a topic and Lord just led me off one more topic। और परमेश्वर ने और एक मेरी अगुवाई की है और एक मुद्दे के लिए। The Bible says पवित्र शास्त्र कहता है in the book of Galatians, गलतियों की किताब में, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh। और तुम आत्मा में चलो ताकि देह की अभिलाषा को तुम पूरा न करोगे। I want to talk to you about the Holy Spirit। मैं पवित्र आत्मा के विषय के ऊपर बात करूंगी। The most important person in your life, आपके जीवन के अंदर सबसे ज्यादा एक प्रमुख व्यक्ति, you may say, yeah, my husband, my wife, my child, my mommy, my daddy, my brother, my sister। I'm telling you, the most important person in your life is Lord Holy Spirit। और आप कहोगे कि मेरा पति या फिर मेरी पत्नी या मेरे बच्चे या मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन। नहीं, मैं कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में सबसे जो मुख्य व्यक्ति है वो है पवित्र आत्मा, The Spirit of God। परमेश्वर की पाक रूह, Your personal connection, और आपका व्यक्तिगत रिश्ता, your personal relationship और आपका व्यक्तिगत ऐसा रिश्ता with the Holy Spirit पवित्र आत्मा के संग is the most important factor। और वो सबसे मुख्य ऐसी चीज है। Where is the Holy Spirit? पवित्र आत्मा कहाँ पर है? The Bible says, आज हमने वो गीत गाया, सुंदर देव हृदय है माझे। पवित्र आत्मा कहाँ पर है?
हमारे हृदय में। हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में। Amen? आमीन। You know, the uncreated God, जो परमेश्वर जिसे किसी ने नहीं सृजा है, the great I am, मैं हूँ सो हूँ, the Lion of Judah, यहूदा का सिंह, the most holy, we say, holy, holy, holy is our God. अति पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर, He is residing in your spirit through the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय के अंदर निवास करता है। The seed of God is in your spirit. और आपके हृदय के अंदर परमेश्वर का बीज है। What is the glory of the new covenant? और ये जो नया करार है उसकी महिमा क्या है? That we are one in spirit. कि हम आत्मा में एक हैं। 1 John 3, और पहला यूहन्ना 3, 8th and 9th verse. 8वां 9वां वचन कहता है, If you can just read it. 1 John 3, 8 and 9. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Whosoever is born of God do not commit sin, for his seed remain in him, and he cannot sin, because he is born of God. 8th and 9th verse. जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से वो जन्मा है। अब यहाँ पर जो बीज की बात है वो पवित्र आत्मा है। यहाँ पर जब वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जो है वो आपके अंदर है, और इसीलिए आप कभी भी जब आप पाप में गिरते भी हैं, जब आप कोई गलती करते हैं, तब आपका कॉन्शियस जो है इट प्रिक्स यू एंड इट सेज कम बैक। You know, unbeliever and believer, the difference is a believer will never enjoy sin. आपका जो विवेक है, आपकी जो अंतर आत्मा है, अगर आप कोई गलती भी करे तो वो आपको एक चुभन सी महसूस कराएगी। एक जो विश्वासी और अविश्वासी, उनके अंदर यही मुख्य अंतर है। पवित्र आत्मा को जो बीज आपके अंदर है, बाइबल कहता है that is the most powerful force in you, and that will fight back sin again and again from your life. वो आपके जीवन के अंदर बहुत ही एक ताकत का सूत्र है, और वो हर बार पाप को आपके जीवन से के अंदर लड़ेगी। What does it say? The seed, वो बीज जो है वो कहाँ पर है? उसका बीज आप में बना है, और आप पाप नहीं कर सकते क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं। आपका जन्म कहाँ से हुआ है? परमेश्वर से। कहिए, मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ, मैं परमेश्वर से जन्मा, और परमेश्वर का बीज मेरे अंदर है, और परमेश्वर का बीज मेरे अंदर है। अब आपके ऊपर है कि आप इस बीज को जड़ पकड़ने दें, आप इस बीज को ग्रो होने दें एक ट्री में और एक फ्रूट में, या आप उस बीज को यूं ही छोड़ दें। बीज का मतलब क्या है? सी व्हेन यू हैव द सीड ऑफ गॉड, सीड को क्या जरूरत होती है? बीज को हमने अगर डाल दिया, आपने डाल दिया लैंड में, तो क्या होगा? सॉइल में व्हाट डू यू डू? बीज को हमें पानी देना है, और हमें क्या करना है? We need to take care of the seed of God that is inside us. जो परमेश्वर का बीज हमारे अंदर है, उसकी हमने देखभाल करनी। The Holy Spirit is indestructible power. और परमेश्वर की जो आत्मा है उसे हम नाश नहीं कर सकते, अविनाशी वो ताकत है। अविनाशी ऐसी ताकत, पवित्र आत्मा की ताकत जो एक बीज के समान आपके अंदर है। अब जितना आप पवित्र आत्मा से संपर्क करेंगे, आप में से कितने प्रभु से बातें करते हैं और सोचते हैं कि हाँ प्रभु भी आपसे वैसा ही इंटरैक्ट करें, प्रभु आपसे बात करें। Jesus wants to talk to you in a personal way. और यीशु मसीह चाहते हैं कि वो व्यक्तिगत तौर से आपके साथ बात करें। Can we read 1 John 3? 1 John 3. Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God.
Therefore, the world know us because it knew him not. देखो पिता ने कैसा प्यार हमसे किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। आज आपको एक टाइटल दिया है, वो टाइटल क्या है? पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, ये कैसा प्यार है तेरा। How has the Father loved us so much that He has called us his children. आज आपका टाइटल क्या है? You are the children of Jesus Christ. आप परमेश्वर की संतान कहलाते हो और इस कारण संसार हमें नहीं जानता। The second verse says, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। आप किसकी संतान हैं? परमेश्वर की। It's because He loved you so much. क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। That He has called you not slaves. कि उसने आपको गुलाम या नौकर नहीं बुलाया है। But क्या कहा है? Children. आप मेरी संतान हो। Amen. Amen. आप यीशु मसीह के संतान हो। Jesus, you are the child of Jesus Christ. आप यीशु मसीह के संतान हो। Are you happy? क्या आप खुश हो? Now I want to tell you, the Lord is good. His goodness and His mercy endureth forever. मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर भला है और उसकी भलाई सदा की है। But I want to tell you, I want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ Come in contact with the person of the Holy Spirit. कि आप पवित्र आत्मा के संपर्क में आए। Colossians 1:27 says, Christ in you is the hope of glory. और मसीह जो आपके अंदर है वही महिमा की आशा है। कोलोसियों 1:27 कहता है, Be rooted in Him. और आप उसके अंदर जड़ पकड़े, Be grounded in Him. और आप उसके अंदर गहराई तक जड़ पकड़े And never forget. और कभी न भूले। प्रभु की मर्जी आपके लिए क्या है? भलाई की है। You know, people may say, no, these are very bad times. ये बहुत ही बुरे समय हैं, बुरे समय हैं. But God never changes. परमेश्वर न बदलने वाला सा परमेश्वर है। And we need the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। जब हम पवित्र आत्मा में आगे बढ़ेंगे, जब हम पवित्र आत्मा के संग चलेंगे, जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक में पड़ेंगे, तो हम शरीर के लालसाओं को, शरीर की वासनाओं को पूरा नहीं करेंगे। आज मैं आपसे कहना चाहूंगी, यदि आपके जीवन में कोई भी अक्षमा है, यदि आपके जीवन में किसी के लिए भी कोई भी घृणा है, नफरत है, ये पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। आप एफिशिएंस में पढ़ सकते हैं कि आपके मुख से कोई भी करप्ट कम्युनिकेशन ना आए जो पवित्र आत्मा को शोकित करे। Any kind of corrupt communication, कोई भी प्रकार का जो गलत बातें, पवित्र आत्मा के साथ अगर हमें संगति को बनाए रखना है, अगर हमें पवित्र आत्मा के साथ और करीब आना है, because the Bible says, what do we say in benediction? The grace of our Father, परमेश्वर का अनुग्रह, the love of Jesus Christ, यीशु का प्यार, the love of the Father, पिता का प्यार, the grace of our Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह, and fellowship of the, पवित्र आत्मा की सहभागिता। ये बेनेडिक्शन के लिए नहीं है, ये सिर्फ the Holy Spirit needs your fellowship. पवित्र आत्मा को आपकी संगति चाहिए। Fellowship is when you spend time with the Holy Spirit. संगति का अर्थ होता है कि जब भी आप समय व्यतीत करते हो पवित्र आत्मा के साथ। और पवित्र आत्मा जो है, हम जो 10 कुंवारियों का भी we see the parable of the 5 wise and the 5 foolish virgins. और हम जो 10 कुंवारियां हैं, जो 5 बुद्धिमान थी और 5 जो मूर्ख थी, उसका हम दृष्टांत भी देखते हैं। The foolish one didn't carry oil. Oil symbolizes the Holy Spirit. और जो बुद्धिमान थी वो अपने साथ में अतिरिक्त तेल को लेकर जाती है। ये जो तेल है वो बयान करता है अभिषेक, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। आज मैं चाहती हूँ कि
हम उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान हो जो अपने तेल को यानी कि पवित्र आत्मा को, लैम्प सिंबलाइजेस द मिनिस्ट्री दैट यू हैव, और जो दिया है वो दिखाता है कि जो सेवकाएं आपकी है। लैम्प सिंबलाइजेस द आउटशाइनिंग of what is inside you. और जो दिया है वो दर्शाता है जो आपके अंदर है, उसे आप बाहर प्रकाशित करते हो। Listen very carefully. आप ध्यान से सुने। दिया जो है वो आपकी सेविकाई है जो आप परमेश्वर के लिए सेवा कर रहे हो, लेकिन तेल जो है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा की संगति है। ऑयल, अगर ऑयल खत्म हो गया तो दुल्हे से मिलने के लिए क्या आप जा पाओगे? ऑयल इज व्हाट नीड्स, ऑयल इज इंटिमेसी विद द होली स्पिरिट। और जो पवित्र आत्मा के साथ में जो नजदीकी रिश्ता है वो है ये तेल। मिनिस्ट्री should come out of intimacy with Jesus. हमारी जो सेवकाएं है यीशु मसीह के साथ में, पवित्र आत्मा के साथ में संगति है, उसका ये एक प्रतिफल हो। आपका जो दिया है वो लोगों के लिए है, जो आप कार्य कर रहे हो, वेरी गुड, व्हाटएवर यू डूइंग फॉर द लॉर्ड, लेकिन आपने कभी नहीं भूलना है कि पवित्र आत्मा का जो तेल है, पवित्र आत्मा के साथ जो सहभागिता है, पवित्र आत्मा के साथ जो आपका रिश्ता है, वो सबसे अहम है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ तेल खत्म हुआ तो लैंप बुझना ही है। What is more important is not ministry. What is more important is intimacy with Jesus. यहाँ पर क्या ज्यादा जरूरी है? सेवकाएं नहीं, आपका यीशु मसीह के साथ में नजदीकी रिश्ता। When the ministry, whatever you do, is born out of this intimacy, it will flourish and flourish and flourish. जब भी आपकी ये जो सेवकाएं है वो यीशु मसीह के साथ में जो आपकी नजदीक है उसके द्वारा अगर उत्पन्न हुई है तो ये और ज्यादा बेहतर होगी, और ज्यादा वो बढ़ेगी और बरकत पाएगी। If you just see about Stephen, अगर आप स्टीफनस को देखें, बाइबल से जब उन पे पथराव हुआ, अगर आप वहां देखेंगे तो बाइबल कहता है he was filled with the Holy Spirit, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था and with faith, और विश्वास के साथ में। Acts 6:5 में आप पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम 6 और 5 में, they chose Stephen, a man full of faith and Holy Spirit. और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो पूरी तरह से पवित्र आत्मा और विश्वास से भरा हुआ था। And Acts 4:13 में आप इसकी चाबी देखिए, what is the key? प्रेरितों के काम 4:13। मैं चाहूंगी कि आप अपने बाइबल खोलें और इस वचन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। What is the key? Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled, and they took knowledge of them, and they had been with Jesus. जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का क्या देखा? साहस। बोल्डनेस, उनका साहस देखा, और ये जाना कि वो अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। क्यों आश्चर्य किया? क्योंकि the way they were filled with the dunamis power of the Holy Spirit, जिस प्रकार से वो पवित्र आत्मा के ताकत के साथ में वो भरे हुए थे, जीवन के साथ में वो भरे हुए थे, they marveled. और उन्हें अचंभा हुआ। ये तो अनपढ़ लोग हैं, लेकिन उनके साहस के सामने, अभिषेक के सामने, पवित्र आत्मा के अनॉइंटिंग के सामने, intellectuals are also a zero. जो सारे पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हैं वो भी शून्य हो जाते What थे। you need is the Spirit of God. जो आपको जिस बात की आवश्यकता है वो है पवित्र आत्मा। What is the last thing it says? फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। यीशु के साथ रहना ही चाबी है कि आप अभिषेक में बढ़ सकते हैं। क्यों उन पे उनको देखकर people were astonished, marveled,
वो हैरान हुए, आश्चर्यचकित हुए, अनपढ़ है लेकिन दे आर सो फिल्ड विद द पावर, इतना कैसे ये बात कर पा रहे हैं? क्योंकि वो किसके साथ थे? यीशु मसीह के क्योंकि वो किसके साथ थे? यीशु के साथ, मैं फिर से दोहराऊंगी, किसके साथ थे? यीशु के साथ। Being with Jesus is the most important thing. यीशु के साथ बने रहना ये सबसे मुख्य बात है। क्या आप यीशु के साथ समय बिता रहे हैं या सिर्फ मीडिया के साथ? If you just listen to negative news, अगर आप हमेशा सिर्फ मीडिया पे न्यूज सुने, no problem, but what is your listening is very important, क्योंकि आपका काम जो है वो आपके हृदय में सारी बातों को डालेगा। और बाइबल कहता है नीति वचन 4 में, अपने हृदय को गार्ड करो, अपने हृदय को सुरक्षित रखो, क्योंकि उसी के द्वारा जीवन का मूल बहता है। All the issues of your life, everything flows। अपने हृदय को क्या करो? गार्ड करके रखो। अरे वो फ्रेंड आई, हाँ उसका क्या हुआ, उसने क्या किया, चलो थोड़ा गॉसिपिंग करते हैं। नो, देयर इज नो टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स। गॉसिपिंग, बिटरनेस, यहाँ की चुगली वहां करना, कड़वाहट, जलन, नफरत, ये चीजें जो है वो पवित्र आत्मा की इस तेल को डिमिनिश करेगी। और आप याद रखिए कि आपके अंदर परमेश्वर का बीज है, आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, तो आप इस पवित्र आत्मा के बीज को बढ़ाएं। क्यों आप अपने हृदय की कमजोरियों को बढ़ाना चाहते हैं? Amen? Amen. Acts 2:46 is the last verse that we will see. 46 इतनी सिंपल चीज है लेकिन ये आपके जीवन में कितना अभिषेक ला सकती है। आप पढ़िए। And they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house did eat their meat with gladness and singleness of heart. प्रेरितों के काम 2:46, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। मंदिर में एक मन। यदि आज आप अपने घर में हैं, जहां पर भी आप हैं और हमें देख रहे हैं, आप अगर हमारे साथ एक मन है, पढ़िए आगे। और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। आनंद, यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि अगर बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है तो उन्होंने आनंद किया। आप अपने घर में जब रोटी तोड़ रहे हैं, प्रभु भोज भी जैसे प्रभु हमारी अगुवाई करेंगे, हम लेंगे। अगर आप अपने घरों में रोटी तोड़ते हैं, और कैसे तोड़ते हैं उसे? ग्लैडनेस, आनंद से, ग्लैडनेस, आनंद से, एंड सिंप्लिसिटी ऑफ हार्ट, मन की सिधाई से, मन की सिधाई। आमेन, आमेन। मन की सिधाई से। और यदि आप उस रोटी को तोड़ते हैं आनंद से, थैंक यू जीसस फॉर दिस ब्रेड, पिता ये रोटी के लिए धन्यवाद। भाई अतुल, क्या आप रोटी लेकर आ सकते हैं? अगर आप रोटी तोड़े, या ऐसा नहीं लिखा चिकन बिरयानी हो तो आनंद मनाओ, और if you have all the nice food and delicacies and well prepared meal, no, एक साथ एक मन होकर, मन की सिधाई से और आनंद से। क्या आज जब हम एक साथ आते हैं, हम इस प्रभु भोज को लेंगे, जब दिस इज जस्ट सिंबलाइजिंग। On the day when Jesus Christ was betrayed, he took the bread, he broke it and gave it to his disciples and said, "Take, eat in the memory of my body which is broken for you and for many." उस दिन जब यीशु मसीह को धोखे से पकड़ाया गया, तभी उन्होंने रोटी को लिया, उसे तोड़ा और अपने चेलों को दिया और कहा कि ये मेरे शरीर की याद में है, जो तुम्हारे लिए और बहुतों के लिए तोड़ा गया था। आपके घर में जो भी रोटी है, अगर चपाती नहीं है, ब्रेड है, देखिए ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आप क्या लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरीके से लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ब्रेड है या चपाती है, पर ये इम्पोर्टेंट है कि आज आप प्रभु के उस शरीर को याद करें। आप याद करें कि यीशु मसीह का शरीर आपकी बीमारी के लिए, आपके पापों के लिए तोड़ा गया।
और मन की खराई से। आइए हम सब एक साथ, यहाँ पर जो भी है उन्होंने अगर रोटी ली है, The same way he took the cup and he drank and gave it to his disciples. Take, drink in the memory of my blood, which is shed for you and for many. और उस दिन उन्होंने प्याला लिया और पिया और अपने चेलों को दिया और कहा कि लो, ये मेरे लहू की याद में है जो तुम्हारे लिए और बहुतों के लिए उंडेला गया। यीशु मसीह के लहू की याद में हम जब इस प्याले को लेते हैं और इसे पीते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि प्रभु हम आज इस नई वाचा में है, चंगाई की वाचा में है। आमेन। अब आप सभी हमारे साथ ले सकते हैं। With gladness, are you happy that you've taken it? Yes. हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर में शामिल हुए हैं और आज हम उसके लहू की याद में। It just says, you know, they didn't have any complicated thing. उनके पास में बहुत ही ऐसा बहुत ही आधुनिक या फिर बहुत ही ऐसी बढ़ चढ़ के ऐसी कोई चीज नहीं थी। With gladness and simplicity of heart. उन्होंने खुशी से और मन की सिधाई से लिया। And 47th verse says, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। Lord started multiplying. Amen. और परमेश्वर की स्तुति करते थे। अब प्रभु भोजन के बाद even we need to remember कि हमें थैंक्स गिविंग करना है, प्रभु को हमेशा धन्यवाद देना है। और आप ये प्रभु भोज जो है ये कोई रिवाज नहीं है। This is just an act which demonstrates the body of Jesus Christ was broken for me and his blood was shed for me. आप एक परिवार होकर जब फैमिली प्रे करते हैं, आप एक साथ भी प्रभु भोज ले सकते हैं। सिर्फ एक चीज आपको याद करनी है, that you need to acknowledge what Jesus has done for you. आपने इस बात को जान लेना है कि जो कार्य यीशु मसीह ने आपके लिए किया। Amen. Amen. Are you blessed with the word today? क्या आज आपने आशीष पाई आज के वचनों के द्वारा? Are you glad that you have a good God? क्या आप खुश है कि आपका भला और बहुत ही भला ऐसा परमेश्वर है? यीशु मसीह की भलाई सदा आपके ऊपर बनी रहे। जिस तरह वचन में लिखा है यशाया 65:11, प्रभु ने आपके ऊपर कौन सा मुकुट डाला हुआ है? भलाई। गुडनेस। आमेन। Amen. भलाई का मुकुट आपके ऊपर है और आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अगर आपका मन चिंतित है तो मैं आपसे कहूंगी, यू आर हाईली फेवर्ड। और परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हुई है। आपके ऊपर परमेश्वर की भलाई है और करुणा निधि, अति करुणा में परमेश्वर आपके साथ है। तो क्या हम as we are ending here, we'll just give thanks to the Lord, saying अति करुणा में दयालु है, भला वो सबका चाहता है, वही करता है उद्धार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पर इतनी करुणा की। अगर आज हम जीवित हैं, अगर आज हम श्वास ले रहे हैं,
तो यही साबित करता है कि अनुग्रहकारी परमेश्वर है आप। We are breathing because of you. We are breathing because of Jesus. We are alive because of Jesus. हम सांस ले रहे हैं वो यीशु मसीह की वजह से, हम जीवित हैं वो यीशु मसीह की वजह से। It is your goodness, Lord. प्रभु ये तेरी भलाई है, It is your goodness, Jesus. यीशु ये तेरी भलाई है। आप सभी के ऊपर यीशु मसीह की इस भलाई को और इस करुणा को हम आजाद करते हैं और कहते हैं कि प्रभु का तेज आपके मुख पर चमके, सदा प्रभु की भलाई आपके जीवन में हो और आपका मुख सदा उसे धन्यवाद देता रहे। दाऊद के समान हमारा मन हिरनी के समान उन जीवित वचनों के लिए, यीशु मसीह की उपस्थिति के लिए हमारा मन प्यासा रहे, हमारा मन सदा उसकी उपस्थिति की खोज में रहे। Be satisfied तृप्त रहे with the goodness परमेश्वर की भलाई that से, comes from my Savior Jesus Christ. जो मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर से आती है। Let Jesus be your rock, your shelter, your strong tower. यीशु मसीह आपकी चट्टान, यीशु मसीह आपकी सुरक्षा और एक किला बने। I surround you by the shield of the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू की ढाल से मैं आपको चारों ओर से घेर लेती Be हूँ। surrounded with His loving kindness. उसकी करुणा से आप घेरे जाएं। जिस प्रकार सियोन देश को पहाड़ों ने घेर कर रखा है, आपके ऊपर परमेश्वर का, that the Lord may surround you, that Jesus may surround you. यीशु मसीह आपको घेर रखे, यीशु मसीह आपको चारों ओर से घेरे रखे, थामे रखे, कि आप उसके पंखों तले सुरक्षा पाए। अब यीशु मसीह के पंखों तले बने रहे और सदा आपके मुख में हो। जब आप रोटी को खाएं तो हमेशा याद रखें, जो भोजन आप हर रोज करते हैं उसमें याद रखें, आनंद से अपने भोजन को खाइए, धन्यवाद देकर अपने भोजन को खाएं। Thank you, Father. In Jesus' name we agree and pray. Amen. Hallelujah. Thank you all the viewers for connecting with us this evening. And before we could just end today's service, let us say the Lord's Prayer, because we had the Holy Communion at our home. Let us say in Hindi so we can just end up very fast. Okay, let us say in English. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Amen. Thank you so much for joining us. आप सभी को धन्यवाद Hope to see you in person very soon. और बहुत ही जल्द हम व्यक्तिगत तौर से मिलेंगे। God bless you all. प्रभु आप सभी को आशीषित करें। Thank you.